حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دل تھامے لرزتے ہوئے قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہا تھا، اور میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل خوف آخرت سے کانپ رہا تھا۔ ہمارے رونے کی آواز ابھی خاموش نہ ہوئی تھی کہ رحمت دو عالم ہمارے دلوں کے سردار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہماری اشک بھری آنکھوں کو دیکھا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ لوگوں کی ایسی حالت کیوں ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو ہمیں وہ لرزہ خیز حقیقت سنائی تھی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قبر کا عذاب تمام عذابوں میں سب سے زیادہ شدید، سب سے زیادہ ہولناک اور سب سے زیادہ وحشتناک ہے۔ قبر ہی وہ پہلی منزل ہے جہاں اگر بندہ کامیاب ہو جائے تو آگے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ بس یہی سن کر ہم سب اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے اور اللہ کے حضور قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے، اور یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر شفقت بھری مسکراہٹ آئی اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ اگر کوئی بندہ ان کا ورد کرے گا تو اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ ہمارا یہ سننا تھا کہ ہمارے دل جیسے خوشی سے جھوم اٹھے، فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی، دلوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اخلاص سے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم تو بہت زیادہ گناہ گار ہیں، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جواب دیا جو ہر گناہ گار کے دل کو زندگی بخشتا ہے۔ فرمایا، تمہارے گناہ چاہے پہاڑوں جیسے ہوں، اللہ کا کلام ان سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور پھر وہ الفاظ فرمائے جنہیں سن کر دل کانپ اٹھے۔ فرمائے، یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اسم اعظم سمجھا جائے، اور جو ان کے ساتھ دعا کرے وہ گویا اللہ کے اسم اعظم سے دعا کرتا ہے، اور اللہ اپنے اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی دعا رد نہیں فرماتا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 2 ایسے گروہ ہیں جنہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، جو گائے کی دموں کی مانند ہوں گے، اور وہ ان سے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے۔ اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ حالت میں ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی جانب میل کریں گی اور خود بھی دوسروں کی طرف میل ہوں گی۔ ان کے سروں پر ایسے انداز کے بال ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو ان تک پہنچے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب وہ محبت سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ جاتی ہیں، اور جب وہ غسل جنابت کرتا ہے تو جس بال پر پانی بہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب شوہر اپنی بیوی سے قربت اختیار کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ عمل اور وہ لذت دنیا اور معافیت سے بہتر ہے۔ اسی محبت پر اور نورانی گھرانے سے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین سے کہہ رہے تھے کہ آؤ اور کشتی لڑو۔ جب وہ آپس میں لڑے تو حضور حضرت حسن کو کہہ رہے تھے کہ حسن ٹانگوں سے پکڑو، اسے پیچھے سے پکڑو، آگے سے پکڑو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے بول پڑی، یا رسول اللہ، آپ چھوٹے کو نہیں بتا رہے، صرف بڑے کو ہی بتا رہے ہیں، آپ چھوٹے کو تو ہدایت دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ تم چپ ہو جاؤ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی، حسن کو میں سمجھا رہا ہوں اور حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں۔ ایمان کی روشنی کا ایک اور منظر اس وقت سامنے آتا ہے جب سیدہ عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں ایسی ہی ہیں جو چاند کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوگی۔ پھر کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا،
عائشہ तुम शायद सोच रही हो कि मैंने तुम्हारे वालिद अबू बकर का जिक्र क्यों ना किया, उनकी तो सिर्फ गारे सूर में गुजारी गई एक रात की नेकी ही सितारों से ज्यादा है। अब आइए उस बेटे की तरफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा थी, जो वफा की एक जिंदा मिसाल थी, जिनकी आंखों पर चमक और चेहरे पर वफादारी का नूर झलकता था। जी हाँ, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह अबुल आस बिन रबी से हुआ, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा फौरन ईमान ले आई। जब अबुल आस तिजारती सफर से लौटे और सुना कि वो ईमान ले आई हैं, तो बोला, ज़ैनब आपने सोचा भी नहीं कि अगर मैं इसरार करता तो क्या होता। हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैं अपने वालिद को जुटला नहीं सकती थी, उन पर मेरी माँ, मेरी बहनें अली, अबू बकर, उस्मान और जुबैर सब ईमान लाए हैं। मुझे भी यकीन है कि तुम भी इनकार नहीं करोगे। अबुल आस ने कहा, मुझे तुम्हारे बाप पर यकीन है, उनकी सच्चाई पर कोई शक नहीं, लेकिन लोग कहेंगे कि मैंने बीवी की खातिर अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। जब जंग बदर का तूफान आया तो अबुल आस कुफार के लश्कर के साथ शरीक हुए और कैद होकर मदीना लाए गए। हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शोहर की रिहाई के लिए वही हार फिदिया के तौर पर भेजा जो उनकी वालदा हजरत सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें जहेज में दिया था। जब वो हार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आया तो आपकी आंखों में आंसू भर आए। सहाबा कराम खामोश हो गए, जमीन पर नजरें झुका ली। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये हार ज़ैनब को वापस कर दूं और अबुल आस को रिहा कर दूं, बशर्ते कि वो ज़ैनब को मदीना भेज दे। सहाबा कराम ने सर तस्लीम खम किया। अबुल आस ने वादा निभाया और ज़ैनब को रवाना कर दिया। जब सईदा ज़ैनब मदीना की तरफ रवाना हुई तो कुरैश ने पीछा किया। हब्बार बिन अस्वद ने नीचे से उनके ऊंट को खौफजदा किया, जिससे आप जमीन पर गिर गईं। आप हामला थीं, चोट शदीद थी और उनका हमल ज़ाय हो गया, मगर उन्होंने सब्र किया, वफा निभाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमेशा एक अनमोल बेटी के तौर पर जिंदा रहीं। ये वो बेटियां थीं जिन्होंने दुख सहे, आंसू बहाए, मगर ईमान की चमक उनके चेहरों से कभी मद्धम ना हुई। कनाना बिन रबी गजबनाक हो गए, अपने तीर निकाले और उन्हें तरकश पर चढ़ाकर ललकारा कि खबरदार, अब तुम में से कोई आगे बढ़ा तो मैं उसे छलनी कर दूंगा। कुफ्फार रुक गए। अबू सुफियान भी उनमें शामिल थे। उन्होंने कहा, भतीजे अपने तीर रोक ले, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कनाना ने पूछा, कहो क्या बात कहना चाहते हो। अबू सुफियान ने उनके कान में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हमें जिस तरह रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ा है, तुम उससे बखूबी वाकिफ हो। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस तरफ लोगों के सामने खुला हमारे सामने ले जाओगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती और जिल्लत और रुसवाई होगी। बेहतर यह है कि तुम इस वक्त हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हमरा मक्का मुअज़्ज़मा वापस लौट चलो और फिर किसी वक्त खुफिया तौर पर मदीना मुनव्वरा ले जाना। कनाना ने यह बात मान ली और हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लेकर मक्का मुअज़्ज़मा वापस आ गए। चंद दिन बाद वो रात के वक्त हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हमरा लेकर बतन या हज पहुंचे और उन्हें हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सपुर्द करके मक्का मुअज़्ज़मा वापस चले गए। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हजरत अबुल आस को हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चले जाने के बाद वो बहुत ही बेचैन रहने लगे और दुखी रहते। जब भी अबुल आस सिरम के मकाम से गुजरते तो ज़ैनब को याद किया करते और कहा करते कि ऐ खुदा, उस शख्स को शादाब रख जो हीरा में मुकीम है। आमीन की लड़की को खुदा जज़ाए खैर दे और हर खामद इस बात की तारीफ जिसको वो खूब जानता है। हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हिजरत करने में यह दर्दनाक मुसीबत पेश आई, इसीलिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके फ़ज़ाइल में यह अरशाद फरमाया है कि यह मेरी खैर बनात है। बेटियों में इस एतबार से बहुत अच्छे कि मेरी जानब हिजरत करने में इतनी बड़ी मुसीबत उठाई। ख्याल रहे कि यह खैरियत अच्छाई इस अमर के बायस है कि हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को राय हक में कई तकालीफ का सामना करना पड़ा। एक मुद्दत वालिद करीम की रफ़ाकत और सफ़र हिजरत में दरपेश मुश्किलात हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़र हिजरत में जो तकलीफ़ें उठाई थी उनका एतराफ़ खुद लिसान नबूवत से मनकूल है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरी खैर बनात है जिसे मेरे लिए इतनी मसाइब से गुजरना पड़ा।
हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का ये अजीत उठाना हजरत अबुल आस के ईमान लाने का सबब बन गया। हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये अच्छाई खैर हजरत अबुल आस तक मुताद्दी हुई और ये वो सिफत है जिसमें आप तीनों बहनों से मुमताज रही। हजरत सईदा रुकिया और सईदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले से मुसलमान थे, लेकिन हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर हजरत अबुल आस पहले से मुसलमान न थे। जंगे बदर में मुशरिकीन के साथ होकर आए थे, फिर कैदी भी हुए और हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा उनका फिदिया मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा भेजना पड़ा और वह सईदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का दिया हुआ हार था जो सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने शोहर के फिदिया में भेजा था। आपका ये वाकया हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के मदीना मुनव्वरा आने का सबब बना। अब हजरत अबुल आस से जो नेकी और कुर्बानी अमल में आएगी वो सब हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का ही खैर शुमार होगा जो मुख्तलिफ अफराद में फैलता चला गया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बेटियों में अफसल हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। उनकी शान अपनी ज़ात में बहुत ऊंची और बुलंद है, लेकिन खैरुल बनात हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ही है। अपनी ज़ात में फजीलत रखना और बात है और दूसरों तक अच्छाई पहुंचे ये पहलू एक खैर है। आलम कबीर अफसलुल बनात सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा थी, तो खैरुल बनात हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की माँ यानी सास ठहरी। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वसीयत के मुताबिक सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी सईदा इमामा बिनते अबुल आस से निकाह किया था और ये भी खैरुल बनात का ही खैर था जो सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिला और हजरत हसनैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दर्जा शफकत मादरी बना। और देखा जाए तो इस पहलू से सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी ज़ुन्नौरीन हो गए और इसी वजह से खैरुल बनात हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की माँ ठहरी और अफसलुल बनात आपकी ज़ौजा मोहतरमा बनी। मोहतरम नाज़रीन, सही बुखारी जल्द अव्वल की एक हदीस में रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन का एक गिरोह एक दिन कब्र के अजाब से पनाह मांगते हुए अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे थे। मैं भी उनमें शामिल था। हमारी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और दिलों में खौफ था, जुबान कांप रही थी कि इतने में नबी रहमत फ़ख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हालत देखकर अरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा, ये तुम्हारी आंखों से अश्कों की रवानी क्यों है? हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हूँ। आप ही ने फरमाया था कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कब्र का अज़ाब तमाम अज़ाबों में सबसे ज्यादा दर्दनाक और होलनाक है और कब्र ही वो पहली मंजिल है जिससे अगर कोई बंदा कामयाबी से गुजर जाए तो आगे की राह आसान हो जाती है। बस इसी खौफ ने हमें अल्लाह की बारगाह में झुका दिया है, इसी दर्द ने हमारी आंखों से आश्क जारी कर दिए हैं। यह सुनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलमात ना बताऊं कि जो बंदा इनका विर्द करे अल्लाह ताला उस पर कब्र का अजाब खत्म कर देगा और उसके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। यह सुन्नत था कि सहाबा कराम के दिल खुशी से झूम उठे और सबकी जुबान पर नारा तकबीर जारी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा 100 मरतबा इन कलमात को पढ़ ले अल्लाह ताला उससे कब्र का अजाब हटा देता है और जन्नत के 8 दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम तो बड़े गुनाहगार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे गुनाह चाहे जितने भी हों, अल्लाह का कलाम इन सब से बड़ा और ताकतवर है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा तवक्कुफ फरमाया और अरशाद फरमाया, ये वो कलमात है जिन्हें इस्म आज़म समझा जाए। जो इन कलमात के साथ दुआ करे वो गोया अल्लाह के इस्म आज़म के साथ दुआ करता है और अल्लाह ताला इस्म आज़म के साथ मांगी गई दुआ को रद्द नहीं फरमाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। जो शख्स ये कलमात अपने लिए या अपने मरहुमीन के लिए पढ़े और एहसाल सवाब करे, अल्लाह ताला उस पर कब्र का अजाब खत्म फरमा देता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। बावाला सही बुखारी जल्द अव्वल। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपनी रहमत के सदके वसीला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे साथ नरमी वाला मुआमला फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए,
میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔